YouTube और Telegram पे, this perhaps is the most dangerous. This is selling technique of many organizations. वो एक particular optional के 5-10 वीडियोस फ्री कर देंगे. आपने वो 5-10 वीडियोस देखे, फिर कोई और 5-10 वीडियो कहीं और से मिले, ऐसे फ्रेगमेंटेड वे में किया, और लेटर यू ज्वाइन दैट इंस्टीट्यूशन. 1 year later they changed. Now the cost of that 1 year, is it free? So whenever something is given to you as free, always you are the product. Regarding your optional subject, how do you choose an optional, especially uh, optional when it decides almost 500 marks, 250 marks paper 1, 250 marks paper 2. Now you spend a lot of time in studying in coaching centers. You spend a lot of time, lot of attempts, maybe writing mains paper. उसका फ्रैक्शन टाइम भी जो है इसको चूज करने में हम नहीं देते हैं. एंड मेनी टाइम्स दिस इज द सोल रीजन फॉर मल्टीपल अटेम्प्ट्स. बिकॉज ऑप्शनल की वजह से ही, अगर ऑप्शनल में इफ यू आर नॉट स्कोरिंग 290 प्लस, दैट मीन्स यू आर नॉट इन द लिस्ट. You will not be selected. You will, if it is less than 270, you are not even getting an interview call. So this is one aspect of the preparation which itself determines where you will be landing. And this much amount of importance, and in choosing we give it the least time, least amount of due diligence, least amount of brainstorming कि किसको चुनना है ऑप्शनल और क्या रखना है ऑप्शनल. ओके, so let us dwell into the session with this background. So first of all, how do you choose an optional? What is the strategy or method followed, which all of us have followed except some of us? हम क्या फॉलो करते हैं? नंबर 1, दिस ईयर्स टॉपर. इनका ऑप्शनल क्या था, है ना? इस साल के टॉपर का क्या ऑप्शनल है, उनकी वीडियोस देख ली, वो हमारा ऑप्शनल हो गया. उसके बाद तुरंत पता किया कोचिंग कहाँ है, कोचिंग ज्वाइन कर लिया. सिलेबस का कुछ पता नहीं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं पता नहीं. इन टॉपर का बैकग्राउंड भी नहीं पता, व्हाई ही और शी चोज दैट ऑप्शनल. नाउ सेकेंडली, फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज दिस ईयर्स टॉपर्स ऑप्शनल और मल्टीपल टॉपर्स. रैंक 1 देख लिया, रैंक 5 देख लिया, रैंक 7 देख लिया, रैंक 10 देख लिया, रैंक 15 देख लिया. इन लोगों के यूट्यूब पे आपने वीडियो देखी, उससे आपने डिसाइड कर लिया कि ये मेरा ऑप्शनल है. सेकंड, हियर से आपको बताया गया सोशियोलॉजी बहुत अच्छा ऑप्शनल है. सोशियोलॉजी इज अ गुड ऑप्शनल, लॉट ऑफ एप्लीकेशन इन जीएस. ये आपने सुना कहीं से, in some telegram group, some your senior aspirant who is as in the dark as you, somebody said like this. Now I'm not judging whether sociology is a good optional or a bad optional. I'm just saying for a test optional I'm naming sociology in choosing. तो आपने इसलिए ले लिया क्योंकि किसी ने आपको बताया कि ये बहुत अच्छा है, ये ऑप्शनल में जो है बहुत मार्क्स के लिए स्कोरिंग है, जीएस में इसका एप्लीकेशन है. आपके एंड से ड्यू डिलिजेंस नथिंग, यू टुक अप सोशियोलॉजी. और ऐसे ऑप्शनल कौन है जो आप हियर से लेते हैं? सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, पबएड एंड पीएसआईआर. these you take on hearsay, and most importantly you think GS mains में there will be help. What help, what kind of addition, etc. And whether that help is cost benefit में having benefit, or is it a cost, you don't know. So this is the second strategy followed, hearsay. Third strategy,
योर एकेडमिक सब्जेक्ट या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। आपका हिस्ट्री ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था, आपने किसी साल का 2 सवाल देखे, 2 क्वेश्चंस। अरे, impact of battle of Buxar on India's history, I know, I have studied in my graduation। एक और क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, अरे आई नो। बट ये 2 सवाल जो हैं, this is not the entire history optional and this is not even the evaluation of history as an optional in UPSC। बट आपने सोचा कि मेरे ग्रेजुएशन में है, ये 2 क्वेश्चन देखे, you went ahead with history as an optional। History again, it is a test subject, it may be anything। Same for engineering subjects, same for mathematics। We take these subjects because we think कि हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। आप बहुत सरसरी निगाहों से, a very swift look at the syllabus and you think you know। So that is the third way where how we choose optionals। Fourth, कोई इंस्टीट्यूट का वेबिनार अटेंड किया आपने ऑन सम एक्स ऑप्शनल, और वहां उन टीचर ने, मेंटर ने, टॉपर ने, जिन जो भी वेबिनार ले रहे हैं, दे विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग पॉजिटिव अबाउट दैट ऑप्शनल एंड देयरफॉर यू चोज दैट ऑप्शनल। कोई एक वेबिनार अटेंड किया आपने, उन वेबिनार में बताया ये फायदे हैं, पबमेड में ये फायदा है, फिलोसफी में ये फायदा है, ज्योग्राफी में ये फायदा है, इतना पार्ट तो आपको जीएस में भी मिल जाएगा, ऐसे लिखने में मदद मिलेगी, एक्स वाई जेड नंबर ऑफ रीजंस। दे मे बी राइट और रॉन्ग, बट you chose because of this one webinar, that is wrong। Fifth, YouTube और टेलीग्राम पे फ्री वीडियोस, this perhaps is the most dangerous। this is selling technique of many organizations। वो एक पर्टिकुलर ऑप्शनल के 5-10 वीडियोस फ्री कर देंगे, आपने वो 5-10 वीडियोस देखे, फिर कोई और 5-10 वीडियो कहीं और से मिले, ऐसे फ्रेगमेंटेड वे में किया, और लेटर यू ज्वाइन दैट इंस्टीट्यूशन। But you came into that dungeon, you came into that tunnel because you got access to that 5-10 free videos on YouTube, and that became the basis for you to decide optional कि ये free था। I have mentored many students who chose एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूट्यूब के चैनल पे उसके कुछ फ्री बस 10-15-20 वीडियोस थे। 1 year later they changed। Now the cost of that 1 year, is it free? ये जो 1 साल चला गया आपका, when 1 year later you are changing your optional। So whenever something is given to you as free, always you are the product। आपको बेचा जा रहा होगा, तो ये फ्री के पीछे चलते हैं। तो these are the 5 common ways that I came across through which we choose optionals, including me when I chose optional। I chose philosophy on hearsay। किसी ने बता दिया बहुत छोटा ऑप्शनल है और बहुत जल्दी 1-2 महीने में खत्म हो जाता है, ऐसे करके, दैट इज हाउ आई चोज फिलोसफी ऑप्शनल, एंड फॉर दैट रीजन माय फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स आई सफर्ड। I got more than 440 in GS, but 170 in combined both of my optionals। That was the only reason why I couldn't clear in my first attempt। Okay, now how should you choose? So first step was how do you choose, second step is how should you choose। आपको कैसे करना चाहिए choose? Number 1, go through the UPSC notification जिसमें सारे ऑप्शनल लिखे हुए हैं along with syllabus। आप पूरे नोटिफिकेशन में जाइए, यहां से आपको
फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, 5 to 6 ऑप्शनल्स दैट यू लाइक प्राइमा फेसे। ज्योग्राफी दिख गया आपको, फिलोसफी दिख गया आपको, PSIR दिख गया आपको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिख गया आपको, एंथ्रोपोलॉजी दिख गया, सोशियोलॉजी दिख गया, आपका कोई इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट दिख गया। ऐसे 5-6 सब्जेक्ट्स जो है आपको वहां से निकाल लेंगे। सेकेंड स्टेप, नाउ पिक अप वन सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यू पिक्ड अप फिलोसफी। अब फिलोसफी का सबसे पहले तो डिटेल्ड सिलेबस देखिए, क्या लिखा है सिलेबस में, आपको कितना समझ आ रहा है, कुछ टॉपिक समझ आ रहे हैं, whether it makes sense to you or not. See the detailed syllabus, see last 3 to 4 years questions। एक तरफ सिलेबस को रखिए, दूसरी तरफ क्वेश्चन को रखिए, और मैच कीजिए कि क्या आपको सिलेबस और क्वेश्चन के बीच में बिना कुछ समझे जाने भी सिमिलैरिटीज दिख रही हैं। अगर सिलेबस में लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल विमेन लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स, so can you find out in the paper that there is a question on women empowerment, land and property rights? अगर तो बिल्कुल ही कुछ रिलेशन नहीं समझ आ रहा है आपको सिलेबस और क्वेश्चंस में, that is a clear tell that you should not be choosing that optional. So for every subject, अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर के लिए करना है, ये जो 5-6 ऑप्शन आपने चूज किए हैं सभी के लिए आपको ये करना है, सिलेबस देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने। दिस विल नैरो इट डाउन, एक दो ऑप्शनल एलिमिनेट हो जाएंगे आपके। थर्ड स्टेप, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में द सब्जेक्ट, टाइम टेकन, the optional how much time it is taking. For example, PSIR, I know of very reputed faculty taking 6 months, 5 to 6 months for classes only. Now we cannot for this very reason go for PSIR. If you want to decide your optional in October, November, December, you cannot go for PSIR। 5 महीने है ही नहीं आपके पास। If you want to go with PSIR as an optional, you will have to choose around June, July time and for your next attempt। मतलब 2023 के लिए चूज करते हैं आप 2022 के जून जुलाई में, सो दैट बिटवीन दैट जून टू दिसंबर पीरियड यू कैन गिव टू योर ऑप्शनल। क्योंकि एक बार सिर्फ क्लास नहीं करनी है, इसको रिवाइज करना है, इसके टेस्ट लिखने हैं, टेस्ट सीरीज लिखना है, आंसर्स लिखने हैं। सो हाउ मच टाइम इज बीइंग टेकन? if it is a 5 to 6 months class, you will have to check and calibrate with your attempt and preparation strategy। contribution to GS, फॉर एग्जाम्पल एंथ्रोपोलॉजी बहुत कम समय लेता है, maybe it takes 3 months or perhaps even less, but its contribution to GS is negligible। whereas for example PSIR, international relation, it is in your GS mains paper 2, polity part again in your GS mains paper 2। so contribution to GS is the second cost benefit analysis। third, resource available, कितनी आसानी से इसका रिसोर्स अवेलेबल है। नाउ optional is one subject where I would say joining the right coaching center is the most important thing। for rest of this इतना जरूरी नहीं है। आप पॉलिटी हो सकता है कहीं एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़े, एक अच्छे टीचर से नहीं पढ़े, हिस्ट्री में किसी कोट अनकोट बकैत टीचर से पढ़ ले, सेल्फ प्रोक्लेम बकैत, जो खुद को कहते हैं कि हाँ भाई हिस्ट्री पढ़ाने का मतलब ये होता है।
तो दैट वुड नॉट डैमेज योर इंटायर अटेम्प्ट. बट अगर आप उन्हीं से हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ लेंगे, यू आर गॉन. यू विल नो मोर अबाउट ओसामा देन चंद्रगुप्त मौर्य. सो रिसोर्स अवेलेबल में, whether there is the right institute or not, or whether there is content available easily or not, best would be a coaching. Only reason is these people will reduce your time. टाइम एंड बर्डन रिड्यूस हो जाएगा. ऑप्शनल पढ़ने में आपको एक क्लियर कट बॉर्डर मिल जाएगा कि मुझे दिस इज द स्ट्रक्चर इन विच आई हैव टू डील विथ माय इंटायर ऑप्शनल. जरूरी नहीं है कि वो लोग सारा पढ़ा देंगे. बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं जो सारा पढ़ाते हैं. स्पेशली द बिग ब्रांड्स, दे विल नॉट टीच, दे विल जस्ट टीच 40% ऑफ द ऑप्शनल, क्योंकि उनके वो कॉस्ट बेनिफिट में बैठता नहीं है. उनका भी कॉस्ट बेनिफिट होगा ना. बट smaller institutes, they do, because they want rank in that optional, so they do go at length in teaching that optional. So optional में see, don't feel like I am saying कि नहीं coaching जरूरी है optional में, but coaching does help. It reduces the time and it gives you a clear cut direction, so that ऑप्शनल की जो प्रिपरेशन है आपकी स्कैटर्ड या वेवर्ड ना हो जाए. आपको पता है कि मुझे इतने समय में ये पार्ट को कंप्लीट कर लेना है. फॉर दैट इट डज हेल्प. बट इवन अदरवाइज कंटेंट अवेलेबिलिटी, बुक्स पता हो आपको एग्जैक्टली कि मुझे ये बुक्स पढ़नी है. मेंटर अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है कि इसमें you can ask a person the right questions and get the right answer, especially getting your answers evaluated. 95% of coaching institutes, for namesake, they are giving answer writing in their optional. They are not bothered about making you write optional answers unless and until it is a separate paid program, because they know अगर ये separate paid program नहीं होता आंसर राइटिंग, तो उससे ये समझ आता ना कि आंसर राइटिंग की अलग इंपॉर्टेंस नहीं है. यानी ऑप्शनल पढ़ना और उसका आंसर लिखना दो चीजें हैं. एंड जितना आप ऑप्शनल का आंसर लिख पाएंगे, दैट मच बेटर यू विल गेट एट योर ऑप्शनल. रीडिंग इज जस्ट वन थिंग, इवन इफ यू आर रीडिंग इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट. However, they dwell into that reading model more because it is easier to execute. क्योंकि लिखवाने में आंसर चेक करना, मॉडल आंसर्स देना, पीवाईक्यू के एनालिसिस करना, that is a more successful recipe. And unfortunately, we are not training for success. So you should have a person who can evaluate your answers. Mentor availability is a very, very big thing, perhaps more important than the coaching part. क्योंकि ये मेंटर आपको बता देंगे कि भाई आप ऐसा कीजिए, ये किताब से ये पढ़ लीजिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स बना लीजिए, इनके ये वाले पर्टिकुलर नोट्स इंपॉर्टेंट है. तो फिर भी जो है, इट इज अ बेटर स्ट्रेटेजी देन यू रीडिंग जस्ट ऑन योर ओन by whatever information you have collected from the internet. So third, answer writing and evaluation. This is very, very important because यहाँ पर सबसे ज्यादा सब्जेक्टिविटी है. आप बहुत बड़े टीचर, रेप्यूटेड टीचर के इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे और आपका आंसर चेक करते हैं जिन्होंने एक आध मेंस लिखा हो, जिसको उन्होंने हायर कर रखा है. एंड दे विल बी गिविंग यू एनी सॉर्ट ऑफ फीडबैक which is way ahead or way far from what UPSC is asking. तभी आपको ऑप्शनल्स में पीवाईक्यू के मॉडल आंसर नहीं मिलेंगे. कोई एफर्ट नहीं डालता. प्लस कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि मॉडल आंसर क्या होता है. सो आंसर राइटिंग एंड इवैल्यूएशन, दिस इज मोस्ट ओवरलुक्ड both by aspirants as well as coaching institutes. So for an aspirant, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आप छोड़ने वाले हैं, सबसे ज्यादा ओवरलुक करने वाले हैं. ये सब चीजें तो आपको मिल जाएंगी. दिस मनी कैन बाई, दिस मनी कांट बाई.
इवन व्हेन यू इनरोल इन अ टेस्ट सीरीज, जब तक आप लिखेंगे नहीं और परस्यू नहीं करेंगे उसको, इवेल्युएट करके फीडबैक लेके समझना, करेक्ट करना, इंप्रूव नहीं होगा. सो डू फोकस ऑन वेदर आंसर राइटिंग इज इजीली अवेलेबल और नॉट, कि वो इवेल्युएट वगैरह हो जाए. सो subject contribution to GS, resource available, these are the cost benefit analysis. Fourth, अच्छा इसमें एक और चीज है, करंट. अब ऐसा ऑप्शनल भी मत ले लीजिए कि जो बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड है, अदरवाइज यू विल हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन करंट. इफ इट इज अ वेरी डायनेमिक ऑप्शनल, फॉर एग्जांपल PSIR में it has become very very dynamic. So if it is too dynamic and if it is not something that you can spend time upon, then it is a not a recommended strategy. कि करंट वर्सेस स्टैटिक कितना है. फॉर एग्जांपल ऑप्शनल्स लाइक फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, दीज आर स्टैटिक, डेड ऑप्शनल्स, नया कुछ नहीं ऐड होता इसमें. सो फॉर दैट रीजन दीज ऑप्शनल्स आर बेटर इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू PSIR. जैसे हमने देखा एंथ्रोपोलॉजी में GS में कंट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन स्टैटिक है, 2-2.5 महीने में ऑप्शनल खत्म, जो आपको पूरे अटेम्प्ट के लिए करना है. यहाँ पर तो आप 5-6 महीने की क्लास करेंगे और फिर न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे अपने अटेम्प्ट तक. एनीथिंग कैन कम. नाउ फोर्थ, योर इंटरेस्ट. उस ऑप्शनल को आपको कम से कम 3 या 4 महीने तो पढ़ना है, प्लस यू हैव टू कैरी इट अक्रॉस अटेम्प्ट्स. तो आपको इंटरेस्ट भी आना चाहिए. ऐसा ना ऑप्शनल ले लें कि आपने उस समय के लिए पढ़ लिया, क्लासेस में बहुत समझ आ रहा था और लेटर यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट ऑप्शनल एंड यू नेवर हैड इंटरेस्ट, यू जस्ट, प्लीज म्यूट, यू जस्ट टुक इट फॉर द सेक कि आपको स्टार्ट करना था और उससे स्टार्ट कर दिया, आपको कोचिंग मिल गई, आप पढ़ने लग गए. वापस आके आपको पेपर में लिखना है मेंस में, और एक में अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ या मेंस नहीं हुआ तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स में लिखना है. So your interest in optional is very very important while choosing an optional. Last, the optionals performance. ये ऑप्शनल परफॉर्म कैसा कर रहा है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ मिथ्स कि भाई फिलोसफी को कम मार्क्स दे रहे हैं, PSIR को अभी कम मिल रहा है, सोशियोलॉजी को ज्यादा मिल रहा है, XYZ नंबर ऑफ मिथ्स. एनी ऑप्शनल विल बी मार्क्ड ऑन इट्स मेरिट. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. यूपीएससी ने आप एक पर्टिकुलर केस में ऑप्शनल चेकिंग का प्रोसेस का और मॉडरेशन का, ये सब सारी चीजें, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बहुत डिटेल्ड प्रोसेस दिया है कि कैसे वो करते हैं. तो इट इज नॉट गोइंग टू फेवर और डिसफेवर एनी पर्टिकुलर ऑप्शनल. इट कैनॉट बी द केस. इट इज एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम. No optional is getting less marks. It is getting less marks because your quality of content, the coaching material content is not up to the mark. Questions are changing, they are not changing the material. So PubAd at a particular period of time was getting very good marks. That teacher did not evolve, UPSC evolved, marks खराब आने लग गए. Okay, so optional performance you have to also see on number of students giving mains. For example, PSIR में 4,000 लोग मेंस देंगे. You have to compete with these 4,000 people. There is less probability, or there is very less degree of uniqueness in your answer. All of you will write that particular coaching institute in Delhi only. आपको average marks मिल जाएंगे. So whereas same for sociology, 2,500 people are writing with sociology. So even when people are getting 260, you have to get that 290, 300 to get that elusive rank. वरना तो हम अटेम्प्ट देते रहेंगे, मेंस देते रहेंगे, इंटरव्यू देते रहेंगे. Even when it is a good optional and you are scoring 260, this is not going to cut it off. Whereas an optional like anthropology, an optional like philosophy, 200-400 लोग दे रहे हैं.
एंथ्रो तो ज्यादा दे रहे होंगे, फिलोसफी में 400 people are writing. You have more chances to perform better, provided you work hard. आपका कंटेंट बेटर होना चाहिए, आपकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए. It will be well rewarded. Okay, so now this is just an analysis of how to choose an optional. It is up to you to follow these steps. First, 5 to 6 optionals you choose, pick up one subject, see the detailed syllabus, last 3 to 4 year questions. From this you can find out syllabus और questions से कि मुझे ये optional थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है, थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है आपको. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. सब्जेक्ट में टाइम कितना लग रहा है, इसमें रिसोर्स कितना अवेलेबल है. रिसोर्स में भी कोचिंग के अलावा सिर्फ कोचिंग मिलना नहीं है, आंसर राइटिंग और इवेल्युएशन के लिए क्या फैसिलिटी अवेलेबल है. इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीएस एंड एसए. एथिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है, एसए में क्या कंट्रीब्यूशन है, जीएस 1 to 3 में 4 में क्या कंट्रीब्यूशन है, वो पार्ट देखना है आपको. प्लस हाउ मच टाइम यू हैव टू स्पेंड ऑन योर ऑप्शनल वंस यू हैव कंप्लीटेड इट, और द करंट एस्पेक्ट. ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिए. फिर दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, योर इंटरेस्ट वेदर इन इवन इफ यू हैव गॉन फॉर सपोज PSIR, you have 5 months to prepare. Now you should be interested in international relation, you should be interested in understanding the Indian constitution. So your interest is also very important. And last, that optionals performance, you will have to see there are people who have come out with statistics कि किस optional में कितना number of people are clearing it. However, I would not go too much into it क्योंकि then those are just statistics on averages. You have to get that elusive rank. This rank is not an average. अगर रैंक 1 का ऑप्शनल निकाला जाएगा तो ऐसा कोई स्ट्रेटेजी या कोई पर्टिकुलर वो नहीं मिलेगा, और या रैंक 1 से 30 तक निकाला जाएगा तो ऐसा पर्टिकुलर कोई वो नहीं मिलेगा. ओके, so with this we will conclude that session. If you have any doubt regarding choosing the optional, please send us a mail on this mail ID and somebody from our team will contact you. Okay, so thank you for your time and patience.